BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں بچوں سے زیادتی کے واقعات مسلسل بڑھتے ہوئے صرف ایک سال میں 48% اضافہ. پسند کی شادی کرنے پر لاہور میں دن دہاڑے بیٹی کو قتل کرنے والے باپ کو سزائے موت, بھائی اور 2 دوسرے لوگوں کو بھی سزائے موت. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے تنازعات میں مرکزی نقطہ مقبوضہ بیت المقدس کیوں ہے. پاکستان میں بچوں کے خلاف جرائم اور جنسی زیادتی کے کیسز میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے. کئی بچے خود اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ ہیں. بعض نوعیت کے کیسز میں تو 100% تک کا اضافہ ہوا ہے. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز میں صرف ایک سال میں 48% اضافہ ہوا ہے. ان متاثرہ بچوں میں 66% لڑکیاں ہیں. تفصیل کے ساتھ عنبر شمسی. 7 سالہ آمنہ راولپنڈی کی انہی گلیوں میں پکوڑے خرید کر گھر واپس جا رہی تھی کہ وہ گمشدہ ہو گئی. کئی گھنٹوں بعد ایک شخص یہیں ایک بوری میں بچی کی لاش لے کر جا رہا تھا, جو پولیس اور محلے والے اسے پکڑنے میں کامیاب رہے. بندے کی یہ گوشت کا کام کرتا ہے سبزی منڈی اسلام آباد. SHO جہانگیر خان بھٹی نے مجھے بتایا کہ بچی کے پوسٹ مارٹم سے تصدیق ہوئی تھی کہ ملزم خالد حمید نے اسے ریپ کیا تھا اور اس کی لاش پر تشدد کے نشان بھی تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ آمنہ کو یہاں اپنے کرائے پر لیے گئے گھر پر لے کر آیا تھا. جب پکڑا تو اس نے سے ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں, تو اس نے کہا میں نے بیٹھک کرائے پہ لی ہوئی ہے. ملزم کو ہم نے گرفتار کر لیا, پھر اس کا ریمانڈ لیا, پھر اس کا DNA ٹیسٹ کروایا تاکہ کورٹ میں ثابت ہو جائے. پھر اس کے خلاف شہادت اکٹھی کی, تو اب وہ ہمارے پاس ریمانڈ پر ہے. ملزم خالد حمید کا اصرار ہے کہ وہ معصوم ہے, لیکن پولیس کو یقین ہے کہ اس کے خلاف شہادتیں مضبوط ہیں. پورا محلہ اس وقت خوف زدہ ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک بچے غیر محفوظ, اکیلے اور بغیر نگرانی کے ان اندھیری گلیوں میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پولیس نے اس علاقے میں کرائے پہ چڑھنے والے گھروں کو تالا تو لگا دیا ہے, لیکن والدین یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس کس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. بچوں کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بچوں کے خلاف جنسی استحصال اور تشدد کے واقعات میں 48% اضافہ ہوا ہے. ان بچوں کے لیے اپنا گھر بھی محفوظ نہیں ہوتا. سم ٹائمز ان کے لیے مسجد, مدرسہ, اسکول کوئی بھی جگہ ایسی محفوظ نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ بچہ یہاں پہ محفوظ ہے. واقعات میں اضافہ ضرور ہوا ہے. اس کی کچھ ریزنز یہ ہو سکتے ہیں. ایک تو رپورٹنگ زیادہ آگے, اویئرنیس ریزنگ کا, جس طرح سے میں نے بتایا کہ اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, میڈیا کے تھرو آ رہی ہے. ہماری اپنی کمپینس ہیں اور باقی آرگنائزیشنز ہیں جو اویئرنیس ریزنگ پہ کام کر رہی ہیں. بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے کیسز منظر عام پر زیادہ آ تو رہے ہیں, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سزاؤں کی شرح اب بھی بہت کم ہے. عنبر شمسی, BBC نیوز, اسلام آباد. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دا چلڈرن کے ڈائریکٹر ارشد محمود. ارشد محمود صاحب, سیربین میں خوش آمدید. آپ کے خیال میں پاکستان میں بچوں کے خلاف جرائم کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں؟ جی ارشد محمود صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ارشد محمود صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایسا لگتا ہے کہ کچھ تکنیکی مشکلات کی وجہ سے ارشد محمود صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی. آئیے فی الحال اسلام آباد سے لاہور چلتے ہیں, جہاں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پسند کی شادی کرنے پر اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں قتل ہونے والی خاتون کے 4 قاتلوں کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے. لاہور سے ہماری نامہ نگار شمائلہ جعفری نے کچھ دیر پہلے یہ تفصیل بھیجی. میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے قریب موجود ہوں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ فرزانہ بی بی کا قتل ہوا تھا, اور تقریباً 6 ماہ پہلے ایک صبح فرزانہ بی بی اپنے شوہر اقبال کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے لیے آ رہی تھی کہ بالکل اسی جگہ پر ان کے خاندان کے کئی لوگ پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جب یہاں پہنچی تھی تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا. ان کے بھائی, ان کے کزن, ان کے والد اور ان کے سابقہ منگیتر نے.
फरजाना को वो घसीट कर सड़क के दूसरी तरफ से बिल्कुल इस जगह पर ले आए थे और यहाँ पर जो है वो इनको ज़मीन पर गिराया गया था, जिसके बाद ईंटें मार मार कर उनको कत्ल कर दिया गया था। आज लाहौर की एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फरजाना कत्ल केस में फरजाना के वालिद, उनके भाई, उनके साबिक मंगेतर, उनके कज़न को 3 बार मौत की सज़ा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया है, जबकि फरजाना के एक दूसरे भाई गुलाम अहमद को 10 साल कैद की सज़ा दी गई है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, लाहौर। अरशद महमूद साहब के साथ हमारा राब्ता दोबारा कायम हो गया है। आइए बात को जारी रखते हैं। अरशद महमूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उनके हवाले से जो क़वानीन हैं वो कितने मजबूत हैं? देखिए जी, इसमें एक तो कवानीन की भी बात है कि उसको देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की डेफिनीशन है, बच्चों के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद है, उसको देखने की ज़रूरत है। और उसके हवाले से क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल एक कई अरसे से जो है वो पार्लियामेंट के सामने पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये नहीं है कि बिल्कुल कवर्ड नहीं है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 376 और 77 में कवर्ड हैं बच्चों के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, लेकिन फिर जो निज़ाम है जनरली, जो ड्यूटी बियरर्स हैं वो कितने अवेयर हैं और कितने सपोर्ट करते हैं, मुआशरा कितना सपोर्ट करता है जब बच्चा किसी ऐसे मरहले से गुजरता है। अरशद महमूद साहब, आदाद शुमार बताते हैं कि शहरों से ऐसे केस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, देहातों से कम रिपोर्ट होते हैं, तो क्या वहाँ केसेस कम होते हैं या फिर रिपोर्ट नहीं किए जाते? मेरे ख्याल में जी ये तो रिपोर्टिंग का है बेसिकली। जो अभी ये केसेस के नंबर में इजाफा हुआ है और शहरी इलाकों से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो आगही या शऊर बढ़ रहा है और मीडिया का इसमें एक रोल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देही इलाकों में चाइल्ड एब्यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ख़ास तौर पर वल्नरेबल होते हैं, जो पनाह गुज़ीन कैंपों में होते हैं या शिद्दत पसंदी, कुदरती आफात की वजह से जिनके माँ बाप नहीं रहते, क्या उनके लिए कोई ख़ास निज़ाम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं समझता हूँ जैसे आपने इशारा भी किया, ये जो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ कैंप्स में रहते हैं या जो इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं और उनके लिए कोई इस तरह के खुसूसी इक़दामात जो है मैं नहीं समझता हूँ कि उठाए गए हैं। और जनरली भी हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। इस्लामाबाद से अरशद महमूद साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब कुछ मुख्तसर खबरों पर एक नज़र डालते हैं। इंडियन रियासत हरियाणा में पुलिस का कहना है कि मुतनाज़े गुरु रामपाल के आश्रम से 4 लाशें बरामद की गई हैं। इससे पहले मंगल को पुलिस ने गुरु रामपाल के आश्रम पर छापा मारा था, जिसके बाद गुरु के मुरीदों और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई थी। गुरु रामपाल सन 2006 से कत्ल के एक मुकदमे में मतलूब हैं। इराक के शुमाली शहर अरबील में एक खुदकुश बम हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हमला आवर का हदफ अरबील के गवर्नर का दफ्तर था, जिसमें उसने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी के साथ दाखिल होने की कोशिश की, मगर उसे गेट पर ही रोक लिया गया। अमरीका आजकल शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां 50 रियासतों में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात पर है या उससे भी नीचे है। रियासत न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में बर्फ के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोग घरों और सड़कों में फंस कर रह गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी ने सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो शुमाली कोरिया में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर जराइम की बैन अक़वामी अदालत से रुजू करे। रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के नाकाबिल बयान मज़ालिम को ज़ाहिर किया गया है। ज़ियाद ज़फ़र की रिपोर्ट। 한공군의 지휘 성원들과 군인들을 만나실 때마다 한공군에서 가지고 있는 अपने मुल्क में तो ये शख्स किसी देवता से कम नहीं, लेकिन क्या किम जोंग उन इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम के मुर्तकिब हैं? इस खुफिया रियासत से फरार होने वाले लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा को गवाही दी है। इन साबिक कैदियों के ये खाके शुमाली कोरिया की मुख्फी जेलों की एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। इधर शदीद भूख के आलम में ये कैदी चूहे और सांप जैसे जंगली जानवर खाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक जेल में पैदा होने वाले इस शख्स ने बताया है कि इसकी माँ को इसके सामने कत्ल कर दिया गया। शुमाली कोरिया में मौजूद खुफिया जेलों के एक नेटवर्क की ये सैटेलाइट तस्वीर हैं।
मफरूर अफराद से लिए जाने वाले इंटरव्यू पर मबनी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 दिहाइयों के दौरान लाखों सियासी कैदी इन कैंपों में तबाह हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन ने शुमाली कोरिया में तशद्दुद, सियासी जबर, कत्ल, रेप, जबरी इसकात हमल और दीगर जराइम के शवाहिद सुनने के बाद ये तफसीली रिपोर्ट जारी की है। शुमाली कोरिया के पास एटमी हथियार मौजूद हैं जो मगरबी दुनिया में परेशानी का बायस हैं। अब शुमाली कोरिया ने कहा है कि इसके कायद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई का रद्द अमल मजीद जौहरी टेस्टिंग से दिया जाएगा। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। 4 मिनट के एक मुख्तसर वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में गुज़श्ता रोज़ एक यहूदी इबादतगाह पर हमले में हलाक होने वालों की तादाद अब 5 हो चुकी है। शहर में सूरत हाल अभी तक इंतहाई कशीदा है। दोनों फ़लस्तीनी हमलावरों को पुलिस ने हलाक कर दिया था और इसराइली फ़ौज ने उस फ़लस्तीनी के घर को आज मिस्मार कर दिया जिसने चंद रोज़ पहले एक ट्राम स्टेशन पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिससे एक इसराइली औरत हलाक हो गई थी। मशरिक़ वस्ता के अमूर के लिए BBC के एडिटर जेरेमी बाउन ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में इस बात का जायज़ा लिया है कि मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस क्यों इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के तनाज़े में एक गैर मामूली हसास मामला है। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आमिर अहमद खान। बैतुल मक़दिस में ये वाक़या कई माह के तनाव के बाद पेश आया। शहर में तनाव और फ़लस्तीनियों की सियासी मायूसी की वजह से कई बार खून बहा है। इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान आज तक फासले कम न हो सके और अमन की कोशिशें नाकाम रहीं। बैतुल मक़दिस में जारी इस तवील जंग के दौरान फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की एक नस्ल जवान हो गई है। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा के मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी पर गुस्सा है। ये मस्जिद एक यहूदी इबादतगाह पर तामीर की गई थी जिसे रोमन्स ने तकरीबन 2000 साल पहले तबाह कर दिया था। इसराइल का कहना है कि इसका मस्जिद का मौजूदा मकाम बदलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कई फ़लस्तीनियों को इस बात पर यकीन नहीं। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस के मुस्तक़बिल के बारे में फ़लस्तीनियों की परेशानी की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो इसे अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसराइल का दावा है कि पूरा बैतुल मक़दिस इनका दारुल हुकूमत है। यहूदियों पर होने वाले हमलों में ट्राम के इंतज़ार में खड़े यहूदियों को गाड़ियों से कुचल देने जैसे हमले भी शामिल हैं। यहूदियों की इबादतगाह में हलाकतों पर दुनिया भर से शदीद रद्द अमल सामने आया। सदर ओबामा भी फरीकैन के दरमियान अमन लाने में नाकाम रहे। आज पेश आने वाले कत्ल के वाक़यात इस इंतहा पसंदी की कासी करते हैं जो पूरे मशरिक़ वस्ता को एक ऐसे बहरान में डाल सकता है जिससे निकलना मुश्किल होगा, और हमें पता है कि इस किस्म का तशद्दुद किस तरह वक्त के साथ बढ़ सकता है। गज़ा में इसराइली हलाकतों पर जश्न मनाया गया, लेकिन कई फ़लस्तीनी इसके नतीजे में शुरू होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के बारे में फ़िक्रमंद हैं। फिर भी इनमें से कई लोग हमास के रद्द अमल से गैर मुत्तफ़िक नहीं। हमास बदला लेने पर जोर देती है और उसका कहना है कि इसराइली कब्ज़ा बैतुल मक़दिस में बदअमनी की वजह है क्योंकि वहाँ पर इसराइली आबादकार जराइम में मुलव्विस हैं। इसराइल ने एक सख्त रद्द अमल की तंबीह की है। माजी में इसराइल ने फ़लस्तीनी हमलों के जवाब में यहूदी बस्तियों की तौसीक़ का हुक्म दिया, जिसे एक नाम नहाद सहूनी रद्द अमल कहा जाता है। सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ यकीनी हैं। दोनों जानिब के ज़ख्म अभी भरे नहीं। गुज़श्ता जंग के बाद गज़ा के कई हिस्से अब भी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। गो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इससे तीसरे फ़लस्तीनी इंतफ़ादा की राह हमवार होगी या नहीं, लेकिन कब तक। मशरिक़ वस्ता के अमूर के लिए BBC के एडिटर जेरेमी बाउन की रिपोर्ट। आइए अब मौसीकी का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में मौसीकी हमेशा से एक ऐसा शोबा रहा है जिसमें गैर मामूली ताउन रहा है। हाल ही में लंदन के दौरे पर आए हुए शाम 84 घराने से ताल्लुक़ रखने वाले क्लासिकी गुलकार शुजात अली खान से हमारे साथी डीनो अली ने ये पूछा कि जब उन्होंने इंडिया जाकर परफॉर्म किया तो उन्हें वहाँ कैसा लगा। नहीं सर, फेवरेटिज्म तो होता है हर जगह पे। अगर हम पाकिस्तान में कोई आके गाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी कहेंगे कि यार उस बंदे को ज़्यादा शोहरत मिल रही है, हमारे मुल्क में आके वो नाम कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो पर्सनली मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगा, जो जजेस के जब तक जजेस की हम जजमेंट पे रहे हैं
तब तक तो किसी जज ने हमें बुरा नहीं कहा। आशा भोसले जी आंसू, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बोला कि भाई ऑन द रिकॉर्ड है कि सलामत भाई के आप सुना है, आप पोते हैं, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। सो मेरे लिए मैंने तभी बोल दिया था कि मैंने कहा मैंने जीत के नहीं जाना यार, यही जीत है। इतनी लेजेंड, लिविंग लेजेंड है आशा जी, वो इतना कुछ कह दें मेरे बारे में, इससे बढ़ के क्या है मेरे लिए। सो तो बहुत प्यार मिला। फिर रमेश रेशमिया रो पड़े, स्टेज पे आ गए, शंकर महादेवन साहब आ गए, यानी कि हमें प्यार बहुत मिला। तो फेवरेटिज्म तो होता ही है, हम कहीं भी चला जाएँ वो तो चलता ही है। अब तक ज़िंदगी में क्या हाइलाइट्स रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज? अभी तक तलाश कर रहा हूँ, हाईलाइट मिल जाए क्योंकि हमारा जो काम है बहुत स्ट्रगल का काम है। तो दीनू भाई इसमें इट्स लाइक अ सी, मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा ये काम समंदर है, एक दफ़ा जब आप इसमें अंदर उतर जाओ तो फिर किनारा दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो अल्लाह करे वो हाईलाइट मिल जाए जिसका मुझे इंतज़ार है। शुजात मुझे बताएं कि जब आप एक यंग सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं और क्लासिकल मौसीकी को लेके चलना है जी, तो जब आप एक ऐसे जॉनरा को इस फील्ड में लाते हैं जिसमें कमर्शियल म्यूज़िक ज़्यादा चलती है, पॉप म्यूज़िक का ज़्यादा रुझान पे है पॉप म्यूज़िक, और ज़ाहिर है जो चीज़ कमर्शियल होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक को लेके चलना है, अपनी फैमिली को भी दिमाग में रखना है कि जी यहाँ से ट्रेनिंग ली है तो उनको भी खुश रखना है, लेकिन दुनियादारी भी रखनी है। तो ये किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं जब आपने इसी जॉनरा को लेके आगे चलना होता है? जी बिल्कुल, बड़ा ख्याल रखना पड़ता। अभी जैसे मैंने गाना किया है चैन कदी नहीं मिलता, वीगा प्रोडक्शन के साथ, अमेरिका में न्यूयॉर्क में हमने किया उसको। तो वो गाना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा दुनियादारी को भी, जो आजकल जो दौर चल रहा है उसको भी फॉलो किया, लेकिन ज़्यादा उसमें क्लासिकल का आंसर है। शुजात अली खान से अली डीनो ने बात की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का सैरबीन शफ़ी नक़ी जामी पेश करेंगे। तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को अब इजाज़त दीजिए।